let me first explain the problem and then you can tell me, okay? So an electronic machine has three major circuit X, Y, and Z. ठीक है? Circuit Y and Z are interdependent, while circuit X operates independently of circuit Y and circuit Z. Okay. So Y and Z are dependent, and X is independent of Y, and X is also independent of Z. It is known that circuit X works properly 80% of time. So probability that X working properly is 80%. Probability that Y works properly is 90%. Probability that circuit Z operates properly is 75%. Okay. However, if circuit Z fails, there is a 60% chance that circuit Y will also fail. तो हमने क्या किया, X, Y, Z को हम लिख सकते हैं कि not fail, not fail, not fail, working properly. और आप X प्राइम फेल, Y प्राइम, Y फेल हो गया, Z प्राइम, Z फेल हो गया. ये टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हो. ठीक है. तो हमें दिया क्या हुआ है, however, if circuit Z fails, अगर circuit Z fail हो गया, अगर ये हो गया है, then there is a 60% chance that circuit Y will also fail. So probability that Y prime will happen given that Z prime has happened is 60%. ठीक है. This is given to you. So now the question is, what is the probability that only circuit Y works? मतलब आपको क्या निकालना है, probability that only circuit Y works. What is only circuit Y works? Only circuit Y works. मतलब Z does not work. Intersection with Y works. Intersection with X does not work. Okay. Yeah, this is the question. All right. So what do you guys think? What do you guys think? क्या करना चाहिए? और एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि भाई X is independent of Y and Z, and Y and Z are independent, dependent आपस में. Y and Z interdependent. So given that you know this, so everybody understood what I've written at all these places. इनका मीनिंग समझ में आ गया कि क्या लिखा है और क्यों लिखा है. तो ये तो सिर्फ हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो गई. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अच्छा इसके आगे और क्या करना है. स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम? So did you guys understand that ये क्या है? What does this mean? Yes, ma'am. कि Z भी नहीं काम कर रहा, X भी नहीं काम कर रहा और सिर्फ Y काम कर रहा है. Only Y is working. ठीक है. तो चलो फिर अब बताओ ये कैसे निकालें given whatever information that is given to you. How should we approach this particular problem? Ma'am, probability of Z complement intersection by into X वो सॉरी इंटरसेक्शन X कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, probability of Z complement intersection by into probability of X complement, because these events are independent. Okay, so which events are independent? X. Ma'am, X is independent of Y and Z, right? हाँ जी. Ma'am, I'm saying कि Z complement intersection Y intersection probability of X complement को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, probability of Z complement intersection Y into probability of X complement. Is that what you are saying? No, ma'am.
ओके। हम y इंटरसेक्शन x नहीं, सिर्फ x। अच्छा, ओके, दिस। x कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, x कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट। ओके, हम ये क्यों लिख सकते हैं? Because these events are independent, x is independent of y and z. तो x अगर y और z का से इंडिपेंडेंट है, तो इससे तो मुझे सिर्फ इतना मालूम चलता है कि अगर कहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y हुआ, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y लिख सकती हूँ। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन z कहीं पे दिया हुआ हो, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लिख सकती हूँ। इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट? हम ये भी तो होते ना, इफ a intersection b are independent, then a intersection b complement and a complement intersection b complement are also independent हाँ, तो events. बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप ये लिख दोगे, अगर मान लो ये लिख रहे हो, तो मैं ये लिख दूंगी, ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोई भी वेरिएशन ले आओ, आई कैन डू द सिमिलर थिंग्स। यस, बट बट इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, राइट? मुझे नहीं पता कि ये तीनों आपस में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मुझे बस ये पता है कि एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, एंड वाई और जेड आपस में डिपेंडेंट है। आपस में तीनों का क्या रिश्ता है, उसका मैं क्या करूं, वो मुझे नहीं मालूम, राइट? So I simply go by the definition, and definition tells me nothing about what should I do about this. So now we have to be intelligent and think कि मुझे क्या दिया हुआ है, what is given to me, what all is given to me, what all is given to me, इसको कैसे लिखा जा सकता है? Okay, so probability that A given B is probability of A intersection B given that B has happened, right? तो मैं अपनी जो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटीज है उसको मैं इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकती हूँ क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी हो गया। अच्छा, अब बताओ, ए हो रहा है गिवन दैट बी हो गया। इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ, यस और नो? इन एनी सिंगल केस, वेदर ए इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, आई डोंट केयर, राइट? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब मेरा मकसद क्या होगा कि भाई मुझे ये निकालना है। अब मुझे इसको इंटेलिजेंटली किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करना है? ताकि जो मुझे मालूम है उसका यूज हो जाए। क्योंकि अब मतलब मैं आउट ऑफ द थिन एयर कोई वैल्यू तो लेके नहीं आऊंगी, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, अच्छा यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट्स डू दिस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? एंड डू यू रिमेम्बर आवर डिस्कशन कि एक बारी हमने तीन इसी तरीके से ब्रेक डाउन किया था और बोला था कि अच्छा, अगर पहले ए हो रहा है, फिर बी हो रहा है, फिर सी हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? और रिमेम्बर, मुझे ये चीज पता है और मुझे z पता है, तो मैं z कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि x y और z के इंडिपेंडेंट है। सपोज आई टेल यू कि पहले z फेल हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? y वर्क किया और फिर x फेल हो गया। मान लो ये प्रोसेस है, दीज दीज आर द स्टेप्स।
So how can I break this down? How can I break this down using this information? Can I write it like this? कि probability that Z prime happened. ठीक है. अब बताओ कि probability that Y worked given that Z prime happened. ठीक है जी. अब Y भी वर्क कर गया, Z प्राइम भी वर्क कर, Z भी नॉट वर्किंग. तो अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट X डिड नॉट वर्क इनटू प्रोबेबिलिटी X डिड नॉट वर्क गिवन दैट Y has worked intersection Z has not worked. Can I write it like this? मैम ये कहाँ से आया? P X complement upon Y intersection Z complement. तो अगर ये तीन इवेंट ऐसे हो रहे हैं, इस सीरीज में चल रहे हैं, ठीक है, और मुझे ये बताना है कि भाई ये क्या है. चलो Yes. पहले पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या है, व्हाट इज दिस इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शंस. P Z complement intersection Y. है ना. And this is probability of X complement intersection Y intersection Z complement. And what is this entire thing? Can you please scroll down? I can't see your screen. So I'm saying, what can you say about this? तो इसको मैंने ये बोल सकती हूँ, राइट. तो इस पूरी चीज को मैं क्या बोल सकती हूँ? Yes. राइट. और मैंने वही किया. और मैंने इसको ऐसे क्यों किया? क्योंकि मुझे मुझे जो चीजें पता थी ताकि मैं उनका यूज कर सकूं, राइट. मुझे Z पता है तो मैं Z प्राइम निकाल सकती हूँ, राइट. मुझे पता है कि आई नो कि अगर Z प्राइम नहीं, Z मतलब Z नहीं वर्क करता है तो Y नहीं वर्क करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 60%. ठीक है. तो Y वर्क करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 40%. और मुझे पता है कि भाई X Y और Z से इंडिपेंडेंट है. तो दिस एंटायर थिंग विल बी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ X प्राइम. यस और नो? So did I convert it into something that could be used? पहले तो मुझे ये बताओ, आर यू गाइस कन्विंस्ड कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लाइक इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ? आर यू कन्विंस्ड टिल दिस पॉइंट? नॉट कन्विंस्ड? टेक योर टाइम. Tell me, where are you facing any problems? अब आपने LHS को हम जो अपने RHS वाली साइड लिखा है वो पूरा इक्वल टू दिस है. LHS है. मैम ये नीचे वाला भी नहीं Z. नहीं,
नहीं नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था कि ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, just to explain you. So I'll just erase this if it's creating any confusion. तो मैं इसको क्यों बोल रही थी कि भाई इसको जो है मैं z प्राइम इंटरसेक्शन y लिख सकती हूँ, और उसके साथ अब ये जो चीज आ गई x प्राइम डिवाइडेड बाय दिस, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? दिस इज नथिंग बट दिस इज माय व्हाट, z प्राइम इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन x प्राइम, और वही तो मुझे चाहिए था, यस और नो, राइट? मैम इसको कैसे लिखा, मतलब x कॉम्प्लीमेंट अपॉन y इंटरसेक्शन z कॉम्प्लीमेंट को ये कैसे लिखा आपने? ये वाली चीज कैसे लिखी? यस मैम, इसको आपने ये जो आपने रेड से लिखा ये कैसे लिखा? मैंने कहा है कि अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट z प्राइम इंटरसेक्शन y, राइट? यस मैम, इतना तो आ गया और समझ। इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया दिस बाय दिस नंबर, इज दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर, राइट? ये जो पूरा नंबर है ये एक्चुअली यही तो है, राइट? अगर मैं बोल दूं कि ये हाँ। a है और ये a है, और आपको क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्राइम गिवन a, तो वो आप क्या लिखते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन x प्राइम, और a क्या है? ये चीज है, तो क्या हो गया? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z प्राइम इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन x प्राइम, राइट? ओके मैम। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर है? हिमांशु, शिल्पी, यस मैम। ठीक है। तो अब ये देखो, अब हमारा ये चीज अगर क्लियर हो गया है, तो अब तो मेरा काम सिर्फ वैल्यूज को डालना है, राइट? तो अब मुझे अगर कोई वैल्यूज बताएगा तो पहले मुझे बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z प्राइम? प्रोबेबिलिटी ऑफ z आई नो इज 75%, so what is the probability of z prime? 0.25। 0.25, ठीक है। what is this probability? what is the probability that y happens given that z does not happen? if I know this, 40%। 40%, so मतलब 0.4. And what is this? कि probability of x not happening given that uh, y happens and z does not happen. And I know that x is independent of y and z. When x is independent of y and z, ये वाला जो नंबर है ये क्या बन जाता है? This becomes nothing but x prime. Yes or no? यस मैम। तो basic, 0.2। yeah. So this is 0.2 into 0.2. ठीक है जी। तो ये जो है, this is my probability of interest. Okay. So that is why, that time I was explaining you कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, because in such cases the story matters, कि आप पहले किसको बना रहे हो, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ताकि आप इस पूरी प्रॉब्लम को इस तरीके से लिख पाओ. This becomes your objective then. Okay. Yes, Manya. Clear? मैम जो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, Mm-hmm.
आई मीन ये जो आपने लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना होगा? नहीं नहीं, इंटरसेक्शन में ऑर्डर नहीं फॉलो करना पड़ता, इट्स लाइक चले चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके। ऑर्डर डज नॉट मैटर, सेम विद यूनियन, सेम विद इंटरसेक्शन। बट हाँ, अब जैसे भाई अगर आपने ऐसे लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब यहाँ पे भाई ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। बट नॉर्मली अगर सब कुछ एक साथ है तो कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। या ओके, सो अभी क्लियर है ये चीज?